خاور، ذوالفقار عباس نقوی، ایڈوکیٹ اور اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی بھی عدالت میں موجود تھے۔ اس کے علاوہ سماعت کے دوران پی ٹی آئی چیئرمین کہلیہ بشرا بی بی، بہنیں اور شاہ محمود کی فیملی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھی، جبکہ آج کی سماعت میں میڈیا نمائندگان اور عوام کو داخلے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گزشتہ روز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور سابق وزیر خارجہ کے خلاف سائفر کیس کے جیل ٹرائل کا نوٹیفیکیشن موصول ہونے کے بعد آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے سائفر کیس کی سماعت ملتوی کر دی تھی۔ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر کے خلاف گجرات ٹھیکوں میں کک بیکس کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، جس کے بعد نیب نے 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا ریفرنس احتساب عدالت میں دائر کر دیا۔ نیب ریفرنس میں سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی اور ان کے بیٹے مونس الہی کو مرکزی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پرویز الہی اور مونس الہی سمیت دیگر ملزمان قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں ملوث پائے گئے ہیں۔ پرویز الہی نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کک بیکس اور رشوت وصول کی۔ نیب ریفرنس میں مزید کہا گیا ہے کہ مونس الہی کے سیکریٹری سہیل ایوان اور 2 سابق سرکاری ملازمین پرویز الہی اور دیگر کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ پرویز الہی اور مونس الہی نے گجرات کے لیے غیر قانونی طور پر 116 ترقیاتی سکیمیں منظور کرائیں۔ ریفرنس کے مطابق پرویز الہی اور مونس الہی نے من پسند ٹھیکیداروں کو کانٹریکٹ دلوا کر رشوت حاصل کی۔ پرویز الہی سمیت دیگر ملزمان نے مل کر رشوت اور ککس بیک کی مد میں 1 ارب 23 کروڑ روپے سے زائد کا مالیاتی فائدہ لیا۔ نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے کہ ملزمان تفتیش میں قصوروار پائے گئے ہیں۔ احتساب عدالت ٹرائل کر کے ملزمان کو سزا دے۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کرتے ہوئے 14 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق کارروائیاں لاہور، خوشا، فیصل آباد، گجرانوالہ، بہاولپور، گجرات اور ساہیوال میں کی گئی۔ لاہور سے ٹی ٹی پی اور جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق لاہور سے کالعدم تنظیم کے گرفتار کمانڈر کے قبضے سے بارودی مواد، 3 ہینڈ گرینیڈ، ڈیٹونیٹر، حفاظتی فیوز، پرائما کارڈ، موبائل فون اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ترجمان کے مطابق دہشت گرد اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ اے این ایف کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ 14 کارروائیوں میں 241 کلو سے زائد منشیات برآمد کر کے 5 خواتین سمیت 14 ملزمان گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ لاہور پر کراچی کی رہائشی خاتون کے بیگ سے 1 کلو 942 گرام آئس برآمد ہوئی۔ ملتان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قطر جانے والا مسافر خاتون سمیت گرفتار کر لیا گیا۔ ساہیوال کے رہائشی ملزمان کے بیگ سے 855 گرام آئس برآمد ہوئی۔ باچا خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر دوحہ جانے والے مسافر کے ٹرالی بیگ سے 995 گرام آئس برآمد کی گئی۔ اسلام آباد میں 26 نمبر چنگی کے قریب ساہیوال کے رہائشی 2 ملزمان سے 1 کلو گرام آئس برآمد ہوئی۔ 26 نمبر چنکی کے قریب خاتون کے قبضے سے 500 گرام چرس اور 250 گرام آئس برآمد ہوئی۔ اورنگی ٹاؤن کراچی میں 2 خواتین کے قبضے سے 22 کلو 800 گرام چرس برآمد کی گئی۔ پتوں کی ٹول پلازا ملتان کے قریب گاڑی سے 9 کلو 600 گرام چرس برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ کامل پور انٹرچینج فیصل آباد کے قریب بس میں سوار ملزم سے 3 کلو ہیروئن اور 1 کلو آئس برآمد ہوئی۔ چراغ آباد انٹرچینج فیصل آباد کے قریب ٹرک سے 46 کلو 800 گرام چرس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ڈائیو بس ٹرمینل اوکاڑا کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم سے 3 کلو 600 گرام چرس، زخاکیل خیبر میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 19 کلو چرس، پنجگور کے غیر آباد علاقے میں اسمگلنگ کے لیے چھپائی گئی 80 کلو گرام چرس، پسنی روڈ تربت کے علاقے میں چھپائی گئی 50 کلو چرس برآمد کر لی گئی۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
सिंध के तालीमी इदारों के तलबा का पन्नू आकिल गैरिसन का दौरा। पन्नू आकिल गैरिसन में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा ने पाक फौज के साथ खुशगवार दिन गुजारा। पाक आर्मी के साथ दिन गुजारने का मकसद पाकिस्तान आर्मी के मुल्क के लिए खदमात से आगाही हासिल करना था। मुख्तलिफ कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के तलबा तालिबात ने पाक आर्मी के साथ यादगार और मसरूफ दिन गुजारा। लाड़काना डिवीजन से सिंध यूनिवर्सिटी, शेख अयाज यूनिवर्सिटी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, कायद आजम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शाह अब्दुल लतीफ कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कश्मीर और जैकाबाद के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। डिवीजन सिखर से IBU यूनिवर्सिटी, शाह अब्दुल लतीफ भटाई यूनिवर्सिटी, बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी सक्खर, शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैबरपुर और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी नौशेरो फेरोज के तलबा तालिबात ने भी शिरकत की। पन्नू आकिल गैरिसन दौरे में 650 तालिब इल्मों ने शिरकत की, जिनमें 450 तलबा और 200 तालिबात शामिल थी। तलबा खेलों, घुड़सवारी और मामूलाती सरगर्मियों में मसरूफ रहे। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम तलबा और तालिबात के लिए रवायती म्यूजिक का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। तलबा और तालिबात ने पाक फौज के मुल्क के लिए खदमात को बेहद सराहा। पाकिस्तान का अफगान बाशिंदों के लिए जज्बा खैर सगाली, मुल्की सालमियत और इस्तेहकाम के पेश नजर हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अपने मुल्क वापस भेजने का फैसला किया। हुकूमती फैसले के बाद हजारों की तादाद में अफगान बाशिंदों के रजाकाराना इनखला का सिलसिला शुरू हो गया। पाकिस्तान ने बगैर किसी जोर और जबरदस्ती के अफगान बाशिंदों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया और उनको दीगर ममालिक में मुंतकिल करने में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने 295 अफगान बाशिंदों को कनाडा जाने में मदद की, जहां उन्हें 33 मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश भी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान से सैकड़ों अफगान बाशिंदों को बरतानिया मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के अफगान बाशिंदों की हिफाजत और सलामती के लिए इकदाम को खूब पजीराई हासिल हुई। बरतानिया, अमरीका और कनाडा में अफगान बाशिंदों की आबादकारी के लिए पाकिस्तान की जारी हिमायत और काविशें उसकी खैर सगाली और हमदर्दी का मुंह बोलता सबूत हैं। अशियाए खुरूनोश में जालसाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। रावलपिंडी में 500 किलो मिलावटी पत्ती बरामद, जबकि चकवाल में 74 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स और जेहलम में 22 लीटर जायदुल मियात जूसेस और 15 किलो खोया तल्फ कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक रावलपिंडी में चेकिंग के दौरान मिलावटी पत्ती सप्लाई करने वाला गोदाम पकड़ा गया। पत्ती के नमूने मजीद तज्जिए के लिए फूड लैब भिजवाए गए हैं। चकवाल में जायदुल मियात कोल्ड ड्रिंक्स की फरोख्त पर 3 करियाना स्टोर्स के खिलाफ एक्शन लिया गया। जेहलम में ममनुआ और गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को जुर्माने किए गए। इनका मजीद क्या कहना था कि खुराक की जालसाजी करने वाले अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरी मिलावट माफिया की निशानदही के लिए फूड सेफ्टी हेल्पलाइन 1223 पर शिकायत दर्ज करवाएं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमत पाकिस्तान के ऐलान से कबल भी गैर मुल्की अफगान बाशिंदों की कसीर तादाद गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाती रही। गुज़िश्ता रोज जाने वाले अफगान शहरियों में 1232 मर्द, 1178 खवातीन और 1366 बच्चे अपने मुल्क चले गए। 1 दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,23,312 तक पहुंच चुकी और वापसी का ये सिलसिला जारी और सारी है। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 121 गाड़ियों में 612 खानदानों की अपने वतन वापसी अमल में लाई गई। मुत्तहिदा अरब अमारात के आज कौमी दिन पर पाकिस्तान और यूएई की लाजवाल दोस्ती को उजागर करने के लिए नया खूबसूरत गाना अमारात और पाकिस्तान रिलीज कर दिया गया है। दोनों ममालिक के देरीना बाहमी और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। गाने के खूबसूरत बोल, अमारात और पाकिस्तान दो दिल हैं मगर एक जान, हम पे है रब का ये एहसान, दोस्ती 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 ये जिंदा आबाद। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की दोस्ती को उजागर करते हैं। गाने के दिल को छू लेने वाले बोल मुत्तहिदा अरब अमारात के नेशनल डे के मौके पर दोनों ममालिक के अवाम के जज्बात के अकास हैं।
الإمارات بلد الإبداع والجمال ترفرف عليها الأعلام بكل فخر، رمز للتطور والتقدم المثالي. وطننا الحبيب يحميه الله في كل ساعة ولحظة. इमारात पाकिस्तान दो दिल है मगर एक जान। इमारात पाकिस्तान दो दिल है मगर एक जान, एक जान। इमारात पाकिस्तान, इमारात पाकिस्तान, हम पे है रब का एहसान। दोस्ती 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 ये जिंदाबाद, दोस्ती 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 ये जिंदाबाद। इमारात के सीने पर हम आबाद हैं बरसों से, इसके लोग हमें प्यारे जैसे प्यार हो अपनों से। पाकिस्तान को समझा था जायद ने भी अपना घर, वो तस्वीर वफाओं का सबके वालिद भी रहबर। जायद के वतन रहते हो धड़कनों में सुबह हो शाम, हम पे है रब का एहसान। दोस्ती 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 ये जिंदाबाद, दोस्ती 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 ये जिंदाबाद। ऐ रब तुझसे दुआ मेरी, सुन ले इल्तिजा मेरी। ये रिश्ते रहे कायम प्यारो अहद मोहब्बत के, हम गाते रहे हर पल नग़्मे उल्फत को चाहत के। हम धरती के बेटे हैं, धरती है अपना ईमान। जायद के वतन रहते हो धड़कनों में सुबह हो शाम, हम पे है रब का एहसान। दोस्ती 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 ये जिंदाबाद, दोस्ती 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 ये जिंदाबाद। इमारात पाकिस्तान दो दिल है मगर एक जान। इमारात पाकिस्तान दो दिल है मगर एक जान, एक जान। इमारात पाकिस्तान, इमारात पाकिस्तान, हम पे है रब का एहसान। दोस्ती 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 ये जिंदाबाद, दोस्ती 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 ये जिंदाबाद। दोस्ती 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 ये जिंदाबाद, दोस्ती 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 ये जिंदाबाद। 1971 की पाक भारत जंग में दहशत और खून की होली खेलने वाले भारतीय और उनके अलाकार मुक्ति बाहिनी के दहशतगर्दों ने मशरकी पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की ऐसे खिलाफ वर्जियां की जो मंजर आम पर ना आ सकी। इस हवाले से पाकिस्तान आर्मी के गाजी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुजात लतीफ 1971 के मशरकी पाकिस्तान में हालात और आप बीती सुनाते हुए कहते हैं कि 1971 में हमें मशरकी पाकिस्तान के शहर
जेसोर में जाने का हुक्म मिला। मेरी यूनिट 40 मील इलाके के दिफा पर मामूर थी। इतने बड़े इलाके का दफा करना बहुत मुश्किल होता है। बदकिस्मती से मुकामी आबादी समेत हमें चारों इतराफ से दुश्मन का सामना था। हमारा सामना जदीद असलहा से लेस 5 लाख भारतीय फौज से था। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड शुजात लतीफ ने बताया कि मुजीबुर रहमान समेत बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग ने प्रोपोगेंडा किया कि हमने मशरिकी पाकिस्तान में 30 लाख लोगों को कत्ल किया। हमारे पास जो दस्तयाब मीडिया था उसे मार्च 1971 में एक माह के दौरान मशरिकी पाकिस्तान से निकाल बाहर किया। जनरल मोनिक शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान खुद कबूल किया कि मशरिकी पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी ने असमत दरी और कत्लेआम नहीं किया। मजीद बराह दहशतगर्द मुक्ति बाहिनी की तरबियत भी भारतीय फौज और रूस के जेर निगरानी हुई। ये तमाम मनगढ़ंत कहानियां हैं जो झूठ की सूरत में बैनुल अक़वामी ज़राए इब्लाग में बताई जाती हैं। मैंने 21 अप्रैल 1968 में कमीशन हासिल किया। 71 में ही हमें ऑर्डर्स मिल गए कि हमने मूव करना है ईस्ट पाकिस्तान। जेसोर हमारा डेस्टिनेशन था। आई थिंक बाय 16th वी वर इन पोजीशन। अभी वी वर कवरिंग 40 माइल्स एरिया। अभी मजबूरन हमें बीच में ह्यूज गैप छोड़ने पड़े। इतने बड़े एरिया का डिफेंस करना बहुत मुश्किल हो गया। एक लोकल पॉपुलेशन हमारे पास हमारी फेवर में नहीं। हमारे सामने भी दुश्मन है, दाएं भी दुश्मन है, बाएं भी दुश्मन है, पीछे भी। हम हर तरफ से दुश्मन से घिरे। हमारे अगेंस्ट 5 लाख हिंदू फौज के आदमी थे, हिंदू फौजी थे जो फुली इक्विप्ड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट। इनकी जहाज थे। उन्होंने कहा जी कि इन्होंने 3 मिलियन आदमियों को ये मुजीबुर रहमान ने प्रोपेगेंडा किया कि क्योंकि सारा इंटरनेशनल मीडिया उनके साथ था। हमारे पास जो थे उनको विद इन 1 मंथ मार्च में ही वहाँ से निकाल दिया गया था। जनरल मानिक शाह ने खुद कहा, ये मैंने उनका खुद इंटरव्यू सुना हुआ है कि ये पाकिस्तान आर्मी ने कोई बंदे नहीं मारे, ये सारा उनकी आर्मी ने ये सारा काम किया। जेनोसाइड भी किया बिहारियों का और साथ इस वजह की उन्होंने खवातीन की बेतहाशा और मुद्दा हम पे डाल दी। मुद्दा उन्होंने हम पे डाल दिया। ये एड्स के आलमी दिन के मौका पर लाहौर के मुकामी होटल में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब समेत दीगर तिबी माहिरीन ने शिरकत की। तफसीलात सैयद आसिफ इलियास की इस रिपोर्ट में। इंसानी जिंदगी के लिए खतरनाक साबित होने वाला खतरनाक मर्ज एड्स, जिस पर काबू पाने के लिए आलमी दिन के मौके पर लाहौर के मकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान, डीजी हेल्थ डॉक्टर इलियास गोंदल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर फारूक, फैमिली फिजिशियन के सदर डॉक्टर तारिक मियां, प्रोग्राम डायरेक्टर मदर एंड चाइल्ड डॉक्टर खलील, MS सरगंगा राम अस्पताल डॉक्टर अमर सलीम समेत दिग्गज तिब्बी माहिरीन ने शिरकत की। कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए डीजी हेल्थ पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल का कहना था कि एड्स का मर्ज न हाथ फैलाने से फैलता है और न ही एक साथ खाना खाने से फैलता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर फारूक का कहना था कि एड्स से मुतासरा 25,000 अफराद को रजिस्टर किया और इनकी अद्वियात टेस्ट मुकम्मल फ्री किए जा रहे हैं। मेरा नाम सरवत अमान है और मैं दोस्ताना मेल हेल्थ सोसाइटी शेखुपुरा से हूँ। हम लोग HIV की प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं जो तकरीबन 2012 से हम काम कर रहे हैं। हमारे इदारे में HIV की स्क्रीनिंग होती है और हम लोग रेफ़र करते हैं ART सेंटर में और उनकी मेडिकेशन स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद उनकी फॉलोअप काउंसलिंग वगैरह होती है। हम अपने तमाम ऐसे कम्युनिटी मेम्बरान्स जो HIV से इन्फेक्टेड है हम उनके साथ हैं। और आज के सॉलिडेटरी डे के हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि कोई भी अकेला नहीं है और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ज़िंदगी कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो जाती, तो खुश रहें, एहतियात के साथ रहें और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हबीबुल असर है और मैं HIV डिपार्टमेंट में पिछले 12 साल से काम कर रहा हूँ।
ٹھیک ہے. آج کا جو سالیڈیٹی ڈے ہے اس میں ہم نے خود سے ایک عہد کرنا ہے کہ جو پاکستان میں HIV کی پینڈیمک کنڈیشن کریٹ ہوئی ہے اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور وہ کیسے کنٹرول ہوگی؟ جب ہم تمام ڈپارٹمنٹس، تمام لوگ، ہر بندہ اس کے ساتھ یونٹی کے ساتھ مل کے کام کرے گا. متاثرہ مریضوں کا کہنا تھا کہ ایڈز خطرناک مرض ہے، مگر بر وقت اس کا علاج کروایا جائے تو بچا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج دنیا بھر میں ایڈز کے عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام نے یہ سیمینار کیا ہے. تو اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ ایڈز کنٹرول پروگرام نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم نے خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ایکسائز پنجاب محمد علی نے آن لائن کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں ڈائریکٹر موٹر برانچ لاہور محمد آصف اور ڈائریکٹر قمر الحسن دیگر سٹاف نے شرکت کی. کھلی کچہری میں موٹر برانچ گاڑیوں کے رجسٹریشن، ٹرانسفر اور پراپرٹی ٹیکس میں آنے والی مشکلات کے حوالے سے شہریوں کی شکایات کے سوال کے جواب دیے گئے اور سسٹم کو مزید بہتر کرنے کی یقین دہانی دلائی گئی. شہریوں کی زیادہ تر شکایات موٹر برانچ پر گاڑیوں کے نمبر پلیٹس اور سمارٹ کارڈ التوا کا شکار سے متعلق تھی، جس پر ڈائریکٹر جنرل ایکسائز نے چند دنوں تک شکایات دور کرنے کا وعدہ کیا ہے. یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور میں شعبہ فزکس کے زیر اہتمام میٹیریل سائنسز میں پیش رفت کے موضوع پر چوتھی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس گزشتہ روز مرکزی کیمپ ٹاؤن شپ میں اختتام پذیر ہو گئی. اختتامی تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سید نے کی. تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد تھے. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر مختار احمد نے بھی کانفرنس میں آن لائن شرکت کی. مزید احوال بتا رہے ہیں کامران علی اس رپورٹ میں. یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور کے شعبہ فزکس کے زیر تمام میٹیریل سائنس میں پیش رفت کے موضوع پر چوتھی 2 روزہ بین الاقوامی کانفرنس گزشتہ روز مرکزی کیمپس ٹاؤن شپ میں اختتام پذیر ہو گئی، جس میں پاکستان سمیت برطانیہ، چین، اسپین، جرمنی، ملیشیا، فرانس، پولینڈ، جنوبی افریقہ، مصر، ارجنٹینا، آسٹریلیا، جنوبی کوریا، ایران اور سعودی عرب کے ماہرین اور سائنسدانوں نے شرکت کی. کانفرنس کے دوران دنیا بھر سے نامور محققین اور سائنسدانوں کی طرف سے مجموعی طور پر 120 سے زائد تحقیقی مقالہ جات پیش کیے گئے. کانفرنس کی اختتامی تقریب کی صدارت وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے کی، جبکہ تقریب کے مہمان خصوصی وائس چانسلر یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر نسیم احمد ستارہ امتیاز تھے. اختتامی تقریب میں چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان ڈاکٹر مختار احمد نے بھی آن لائن شرکت کی اور جامعہ کی اس کاوش کو خوب سراہا. اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد عالم سعید نے کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر آرگنائزنگ کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا، آج دنیا کو درپیش چیلنجز سے چھٹکارا دلانے کا حل صرف تعلیم و تحقیق میں ہی پوشیدہ ہے، جس میں میٹیریل سائنس کو خصوصی اہمیت حاصل ہے. انہوں نے کہا، ترقی یافتہ ممالک کی ترقی خوشحالی کی بنیاد ہی تعلیم و تحقیق میں ہے. اس موقع پر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر فہیم بٹ سمیت اساتذہ اور طلبہ کی کثیر تعداد بھی موجود تھی. ڈپٹی کمشنر لاہور کی ہدایت پر چیف آفیسر اقبال فرید، زونل آفیسر ریگولیشن اقبال ٹاؤن زون صداقت ملک کے زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے. عملہ طے بازاری ریگولیشن کا علامہ اقبال گلبرگ نشتر زونز میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ہمراہ PIA روڈ پر مشترکہ آپریشن کیا گیا. غیر قانونی تجاوزات ختم کر کے 60 ٹرک سامان قبضہ میں لے کر داخل اسٹور میں جمع کر دیا گیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس شروع. پارٹی قائد محمد نواز شریف اور صدر شہباز شریف نے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس کے آغاز میں سینئر پارلیمنٹیرین بیگم نجمہ حمید اور مشاہد اللہ خان کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. بیگم نجمہ حمید کی آج پہلی برسی پر اجلاس نے ان کے ملک و قوم اور پارٹی کے لیے خدمات پر خراج عقیدت پیش کیا. رہنماؤں کا کہنا تھا کہ نجمہ بیگ نجمہ مسلم لیگ نون کی پہچان تھی. بیگم کلثوم نواز کی جدوجہد کے دوران ان کا کردار ناقابل فراموش ہے. مشاہد اللہ خان پارٹی کا قیمتی اثاثہ تھے. مشاہد اللہ خان کی کمی ہمیں ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی. مشاہد اللہ خان نے سخت ترین حالات کا بہادری سے مقابلہ کیا. قبل از مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور شہباز شریف پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے. قائد نون لیگ کے شہباز شریف کے ہمراہ پارلیمانی بورڈ کے تمام اراکین سے بھی ملاقات ہوئی. گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے لمس کے طلبہ وفد کی ملاقات کی ہے. گورنر پنجاب نے طلبہ کو خوش آمدید کہا اور گورنر ہاؤس کی تاریخی اہمیت سے آگاہ کیا. انہوں نے طلبہ کے سوالوں کے تفصیلی جواب بھی دیے.
गवर्नर पंजाब का वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लम्ज़ एक अहम तालीमी इदारा है जिसमें तुलबा की तज्ज़ियाती और तनकीदी सलाहियतों को निखारा जाता है। तालीम का सबसे अहम मकसद अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना है। एक मुआशरे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सोच और आरा हो सकती हैं। मखलूत मुआशरे में दूसरों की राय का एहतराम करना बहुत जरूरी है ताकि मुआशरे में अमन कायम रह सके। उनका कहना था कि पाकिस्तान की नौजवान आबादी मुल्क का सबसे बड़ा असासा है। बदकिस्मती से नौजवानों में गलत बयानी के तहत मायूसी पैदा की गई। कानून और आइन की बालादस्ती से ही आगे बढ़ा जा सकता है। बदकिस्मती से सबसे ज्यादा आइन शिकनी के मुर्तकिब होने वाले दूसरों के साफ दामन पर इल्जाम लगाते नजर आ रहे हैं। हमारे मुल्क में मनफी चीजें कम और मुस्बत चीजें ज्यादा हैं। मुलाकात के इख्तिताम पर तुलबा को तारीखी गवर्नर हाउस लाहौर का दौरा भी कराया गया। आपको बराह सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मौसम सरमा की तातीलात के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में 18 दिसंबर 2023 से 1 जनवरी 2024 तक सरकारी और गैर सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम के सरपरस्त आला डॉक्टर मोहम्मद अजमल कादरी का कहना है कि आम इंतखाबात के दौरान पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। उम्मत मुसलमा फलस्तीनी कौम की बिला खौफ खतर हमायत का ऐलान करेगी। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। लाहौर मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती वतन अजीज में होने वाले आम इंतखाबात के दौरान पूरे मुल्क में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उम्मत मुसलमान फलस्तीनी कौम के बगैर खौफ व खतर हमायत का ऐलान करे। इजलास में शरीक उलमा का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती की मजलिस शोरा का इजलास मरकजी जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद ग्रीन टाउन खानपुर में मुनक़द हुआ। इजलास में मरकजी सरपरस्त आला मौलाना डॉक्टर अजमल कादरी, अमीर मरकजी मौलाना खलील अहमद मुखलिस, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती अहमद अली सानी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती शफीउद्दीन, मौलाना अब्दुल कादर सीनियर नायब अमीर, मुफ्ती रियाज जमील, पंजाब के अमीर मौलाना हसन नासर, जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती खालिद अजहर, मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां अरफानुल हक कादरी, हकीम हसनैन हाफिज समेत शूरा का मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इजलास में अक्सरियती राय से मौलाना खलील अहमद मुखलिस को मरकजी सदर, मुफ्ती अहमद अली सानी को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया। इजलास पंजाब की कारकर्दगी को सराहते हुए मुतालबा किया कि मुल्क में मुकर्ररा वक्त पर आम इंतखाबात करवाए जाएं। इन्होंने रंजार खान कच्चा के इलाके में जारी ऑपरेशन की कामयाबी और शोहदा कश्मीर, फलस्तीन और पाक फौज के शोहदा की मगफरत व दर्जात। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज लस्को राय मोहम्मद असगर की जेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। नादहिंदा सरकारी इदारों से रिकवरी के मामले पर गौर किया गया। इजलास में डायरेक्टर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट राय मसूद खल, मैनेजर कमर्शियल तारिक उस्मान, तमाम सर्कल्स के DCM ने शिरकत की। मुतालिका अफसरान ने सरकारी इदारों के वाजबात से मुतालिक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। नादहिंदा सरकारी इदारों से वाजबात की वसूली के लिए लाइहा अमल पर भी गौर किया गया। डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज राय मोहम्मद असगर ने तमाम सरकारी अफसरान को इदारों से वाजबात की वसूली का अमल तेज करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तमाम DCM नादहिंदा सरकारी इदारों के मुतालिका अफसरान से राबिता करें। वाजबात की वसूली के हवाले से इक़दाम किए गए। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए खुशखबरी। सर्दियों में टेक्सटाइल मिल्स का पहिया जाम नहीं होगा। लाखों मजदूर बेरोजगार होने से बच गए। मौसम सरमा में टेक्सटाइल सेक्टर को 4 माह गैस मिलेगी। सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मामला तय पा गए। मजीद जान लेते हैं अपने रिपोर्टर से। जी, मैं मौजूद हूँ एप्टरमा नॉर्थ जोन के चेयरमैन कामरान अरशद के पास। उनसे पूछेंगे कि टेक्सटाइल सेक्टर का पहिया चलेगा इस बार या नहीं चलेगा, और सुई नॉर्दर्न से जो मुज़ाकरात हुए हैं गैस के हवाले से, उनसे इस हवाले से पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, क्या इसमें तफसीलात बताइएगा जो सुई नॉर्दर्न से मुज़ाकरात? जी, हमारे कोई 2.5-3 हफ्ते से मुज़ाकरात चल रहे थे सुई नॉर्दर्न के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ। तो हमें पहले तो SNGPL ने कहा था कि सर्दियों में हम आपको देंगे ही 100% RLNG या 75% RLNG, 25% डोमेस्टिक, जिस पे नर्ख इतना हाई निकल रहा था और उस पर सनत पंजाब की चल नहीं सकती थी। ना ऐसे था कि हम SNGPL को छोड़ के लेस्को, फेस्को, मैपको या
डीज़ल या फर्नेस ऑयल पे जाते, फिर सनत सारी की सारी बंद होनी थी सर्दियों के महीने में, या जब तक गैस डोमेस्टिक गैस का प्रेशर ना आता कि जहाँ पे हमें फिर से ये 50% डोमेस्टिक 50% RLNG दे सकें। तो 2-3 हफ्ते की बैक एंड फोर्थ काविशों और नेगोशिएशन के बाद SNGPL एग्री कर गया है कि हमें वो 50-50 50% डोमेस्टिक गैस 50% RLNG का ब्लेंड सप्लाई करते रहेंगे ताकि सर्दियों में हमारी सनत बंद ना हो। ये इसका मतलब 4 महीने के लिए दिया गया है, और दूसरा ये सर्दियों में भी ये टैरिफ रहेगा, और गर्मियों में क्या टैरिफ हो सकता है? सर सर्दियों में यही टैरिफ रहेगा। बाकी ये है कि जैसे ही आपकी डोमेस्टिक गैस का प्रेशर बेहतर होता है, टेम्परेचर एंड फरवरी या पहले हफ्ते मार्च में जब बेहतर होंगे, तब हमारी कोशिश होगी कि इस माहदे को फिर से रिविज़िट किया जाए और उसमें डोमेस्टिक गैस का पोर्शन बढ़ाया जाए, RLNG का कम किया जाए, क्योंकि जैसे आपको पता है कि RLNG खासी महंगी है और इम्पोर्ट होती है। ये खुशखबरी सुना दी है कामरान अरशद ने। उन्होंने कहा है कि जी पंजाब की सनतें मौसम सरमा में सर्दियों में बंद नहीं होंगी, और मुज़ाकरात और मामला कुछ सुई नॉर्दर्न से टैरिफ तय कर लिया गया है। 50% डोमेस्टिक गैस मिलेगी और 50% इनको RLNG मिलेगी। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की हिदायत पर SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद चौधरी के हुक्म पर इश्तेहारी मुल्जिमान के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब्जाजार इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट ने टीम के हमरा कत्ल के मुकदमात में मतलूब खतरनाक 3 इश्तेहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान आतिफ असलम और अली हुसैन ने पुरानी रंजिश की बिना पर नवीद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था, जबकि मुल्जिम असलम ने नशा के लेन देन के तनाजे पर अली को छुरी से मार डाला था। इश्तेहारी मुल्जिमान को इंटेलिजेंस CCTV कैमरों की मदद से गिरफ्तार किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। शहरियों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने पुलिस टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान भी किया। चेयरमैन रेलवे मजहर अली शाह की ज़ेर सदारत रेलवे हेडक्वार्टर्स में बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में CEO रेलवे आमिर बलोच समेत दीगर मेंबरान, अंजुमन परवेज, जावेद अनवर, बोबक समेत दीगर मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में रेलवे की कारकर्दगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, दरपेश मुश्किलात पर तफसीली ब्रीफिंग हुई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए सर्विसेज के मयार को बेहतर बनाने की हिदायत की गई। इजलास में फैसला किया गया कि जहां EROs नहीं होंगे वहां ट्रेनों के सफरी दौरानिये में कमी लाई जाएगी। इस मौका पर फ्रेट ऑपरेशन से आमदन बढ़ाने की मुख्तलिफ तजावीज पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि खुद इन्हिसारी से रेलवे सिस्टम बेहतर किया जाएगा। बेंचमार्क्स को जमीनी हकायक के मुताबिक बनाने की जरूरत है। इजलास में बताया गया कि फ्रेट सेक्टर क्लाइंट्स की सहूलत के लिए वेयर हाउसेज बनाने पर काम कर रहे हैं। कॉलोनियों के मीटरों की वापदा को हवालगी और फ्यूल मैनेजमेंट सिस्टम से अखराजात में कमी वाक़या होगी। पेंशन की वजारत खजाना मुंतकली पर बातचीत भी जारी है। इजलास में ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर और रोलिंग स्टॉक की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सखर डिवीजन के ट्रैक को बेहतर बनाने के लिए 9 अरब की प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए जो 2 साल में मुकम्मल होंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की हिदायत पर SSP आतिफ नजीर ने गाजियों और पुलिस मुलाजमीन के लिए खुसूसी बच्चों के वालिदैन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। लाहौर पुलिस की जानिब से 3 माह के दौरान 81 से जायद गाजियों में 25 लाख से जायद, जबकि 211 खुसूसी बच्चों के वालिदैन में 20 लाख से जायद के चेक्स तकसीम किए गए। SSP ने गाजियों और खुसूसी बच्चों के वालिदैन से मुलाकात की, उनके मसाइल सुने और मौका पर उनके हल के लिए हिदायत जारी की। आतिफ नजीर का कहना था कि पुलिस मुलाजमीन के स्पेशल बच्चों की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम किए जा रहे हैं। महकमा पुलिस ने मुलाजमीन के अहले खाना के इलाज मुआवजा, रिहाइश गाहों, बच्चियों की शादी, बच्चों की तालीम और मुलाजमत समेत वेलफेयर के लिए मिसाली इकदाम किए हैं। शुहदा और गाजियों के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन की फराहमी के लिए स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। पुलिस मुलाजमीन के खुसूसी बच्चों का इलाज मुआवजा बेहतरीन तिब्बी इदारों से करवाया जा रहा है। शुहदा के बच्चों को फैमिली क्लेम पर महकमा में भर्ती किया जा रहा है। वेलफेयर का सिलसिला जारी रहेगा। महकमा
ट्रांसपोर्ट पंजाब का बड़ा फैसला। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी ने गैर कानूनी मोटरसाइकिल और रिक्शा बनाने वालों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। तमाम इस्लाह के सेक्रेटरी आरटीएस वर्कशॉप्स को बंद करवाने के लिए 7 मुकदमात भी दर्ज करवाए गए। सीसीपीओ लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म पर डीआईजी ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की हिदायत पर एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा के रात गए सिटी डिवीजन के अहम मकामात समेत थानों के सरप्राइज विजिट किए। एसपी सिटी कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा ने मड़ी रंजीत सिंह पर ड्यूटी देने वाले एहलकारों को भी चेक किया। एसपी सिटी ने थाना बादामी बाग, शादबाग, अकबरी गेट, रंग महल, मोची गेट और चौकी जोसेफ कॉलोनी के दौरे किए। इस मौके पर मुतालिका एसएचओस भी मौजूद थे। कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच में डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ के नाम एक और आजाद। गुज़िश्ता रोज प्रोग्राम पूरा सच में सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर नबीहा अली खान और रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज राना इरफान हैदर ने किसानों के खाद की ब्लैक मार्केटिंग के मसाइल को उजागर किया था, जिस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने नोटिस लेते हुए खाद की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए सेक्रेटरी ज़राअत, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को खाद डीलर्स की दुकानों पर इंतजामिया और महकमा ज़राअत के एहलकार तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।